Hello friends, welcome to my YouTube channel that is EcoShine. For future notification, please press the bell icon. आज की वीडियो में हम देखेंगे scope of microeconomics. The scope of microeconomics have three theories. Number one, theory of product pricing. Second one, theory of factor pricing. And number third, theory of economic welfare. Theory of product pricing. What is given in theory of product pricing is it explains that how the prices of goods and services can be determined. It means with the help of theory of product pricing, that theory is useful to decide or determine the prices of product. By using the theory, the producer can determine the prices of goods and services. Just as simple as that. Only one sentence. What is the use of that theory? With the help of that theory, producer can decide or can determine the prices of their product. What they produce, that the prices of that product can be decided or determined with the help of that theory. In that theory, two things are given. That is demand for that product and supply of that product. Demand of that product and supply of that product. It means by analyzing the demand of our product and supply of our product. It means by analyzing the demand for our product and supply of our product, the producer can determine the prices of their product. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना है तो उसके लिए जो थियरी है उसे क्या कहते हैं? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के मदद से कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकता है. प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए दो चीजें इसमें दी गई हैं. डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट को डिमांड कितना है और हम उस प्रोडक्ट का मार्केट में कितना सप्लाई कर सकते हैं. ये दो चीजों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं. इसके लिए भी दो चीजें दी गई हैं कि डिमांड साइड कवर्स कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई साइड कवर्स प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं या कोई भी प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकता है. इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस. सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, different factors are required, just like raw material, labor, machineries, fuel, money, etc. So all these factors are categorized in four ways. These are also known as factors of production. It means for producing goods and services, whatever the things are required, these things are known as factors of production. And these factors of production divided in four categories. That is, first one is land, second one is labor, third one is capital, and fourth one is entrepreneur. So these are the four factors of production. कितने? 4. सबसे पहले है लैंड, सेकंड वन है लेबर, थर्ड वन है कैपिटल एंड फोर्थ वन है एंटरप्रेन्योर. इनके बेसिस पे
किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. That's why all these factors of production have greater importance in industry, because with the help of these factors of production we can produce any goods and services. So these factors of production does not give work freely. They have to pay certain rewards. So for land it is known as rent, for labor it is known as wages, for capital it is known as interest, and lastly entrepreneur works for profit. All these are the reward of factors of production. All these are the rewards of factors of production. For land it is rent, the reward of land is rent, the reward of labor is wages, the reward of capital is interest, and the entrepreneur works for profit. It means all the factors must have to receive their rewards, because all these factors can't work freely. That's why industrialists or the business must have to pay certain rewards. So these are the reward of factors of production. So what is given in theory of factor pricing? Theory of factor pricing is useful to determine the reward of factors of production. That's it. What is given in theory of factor pricing? Theory of factor pricing में क्या दिया है कि theory of factor के मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो factors of production का जो reward है, जैसे land का reward है rent, वेजेस का, लेबर का रिवॉर्ड है वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट, और इंटरप्रीनर का रिवॉर्ड है प्रॉफिट. ये जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड डिसाइड करने के लिए जिस थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. मतलब थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के मदद से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम रिवॉर्ड डिसाइड कर सकते हैं. जैसे कि लेबर का रिवॉर्ड है वेजेस, सभी लेबर को हम सेम वेजेस नहीं दे सकते. कोई अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस लेबर है, तो उसको हमको ज्यादा वेजेस देने पड़ेंगे. अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर है उसको कम वेजेस देने पड़ेंगे. लेकिन कौन से ग्राउंड पे, कौन से बेसिस पे? तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग यही इस्तेमाल की जाती है. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की मदद से हम फैक्टर्स ऑफ, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रिवॉर्ड है, वो रिवॉर्ड हम डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. तो सिंपल एक ही सेंटेंस है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इज यूजफुल to determine, to decide the reward of factors of production. That's it. Third theory is theory of economic welfare. Theory of economic welfare deals with allocation of resources. Allocation of resources means what? Distribution of resources. Why this term comes out? Because as you know that the wants are unlimited, and to satisfy these wants resources are limited. So the question is arised, how can we solve our unlimited wants with limited resources? That's why the concept is arised. That is why theory of economic welfare. In theory of economic welfare, it gives information about allocation of resources. Allocation of resources means what? Distribution of resources in प्रॉपर वे. अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या? जो भी रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, वो जो भी, या वो नेचुरल रिसोर्सेस हो या आर्टिफिशियल रिसोर्सेस हो या कोई भी रिसोर्सेस हो, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका मैक्सिमम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन करना. ये सब चीजें किसमें इंक्लूड की गई हैं? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. तो जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ये जो रिसोर्सेस सब में अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलोकेट करना है, तो 3 इफिशियंसीज की जरूरत है. इफिशियंसी इन प्रोडक्शन. इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या? by using available resources
प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। इट इज रिलेटेड विथ इंडस्ट्रीज और आवर सोशल लाइफ ऑल्सो। मतलब प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं विच में बी लैंड और अदर रॉ मटेरियल या लेबर्स हो या मशीनरीज हो, ये जो भी रिसोर्सेस हैं ये रिसोर्सेस का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। इफिशियंसी इन कंजम्पशन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ produced goods for consumption of people for maximum satisfaction। मतलब जो भी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए उन तक पहुंचाना, कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर तक पहुंचाना, इसे कहेंगे इफिशियंसी इन कंजम्पशन। अगर हम कोई भी चीज बिना वेस्ट किए, बिना खराब किए अगर हम मैक्सिमम उसका यूज करते हैं, मैक्सिमम उसका कंजम्पशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इफिशियंसी इन कंजम्पशन। इसमें वेस्टेज अलाउड नहीं है। अगर ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिजायर्ड बाय दी पीपल। मतलब जो चीजें सोसाइटी के लिए लगती हैं या जो चीजें सोसाइटी को जरूरत है उसी चीज का प्रोडक्शन करना, इसको क्या कहते हैं, इफिशियंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। मतलब जो चीजें सोसाइटी को चाहिए, अगर प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन जो चीजें सोसाइटी को चाहिए वही चीजें अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। अगर एखादा प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, जो चीजें सोसाइटी को नहीं है, जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी वो चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज इसमें यूटिलाइज किए गए हैं वो वेस्टेज होगी। जैसे कि अभी हम क्या देखते हैं कि जो कीपैड मोबाइल है उसका इस्तेमाल बहुत कम है या नहीं के बराबर है, बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अगर एखादा बिजनेसमैन क्या कर रहा है कि कीपैड मोबाइल का बिजनेस कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है तो फिलहाल की कंडीशन में वो बिजनेस तो टोटली फेल है। जैसे कि नोकिया हमने देखा, वो टोटली फेल है। तो इसीलिए जो चीजें सोसाइटी को चाहिए अगर वही चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं तो इसे क्या कहते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। अगर ये तीन इफिशियंसी अचीव की गई हैं, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक efficiency, then we can achieve the economic welfare of the country।